ماہ مقدس رمضان کا آغاز ہونے میں کچھ ہی دن بچے ہیں۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں شدت سے مطلوب اور پسندیدہ ڈش حلیم بنانے کے لیے بھٹیاں بنانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ پورے مہینے میں شہر کے مختلف ہوٹلوں ریسٹورنٹس میں حلیم دستیاب ہوتی ہے اور خصوصی سٹالز بھی لگائے جاتے ہیں جہاں مہینہ بھر حلیم فروخت کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان کے دوران تیار کی جانے والی حلیم نامی یہ ڈش کاروبار کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کے لیے ملازمت کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ حلیم دراصل ایک عربی پکوان ہے۔ گوشت، دالیں، گندم، مسالے جات سے اسے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے، اعلیٰ معیار کے پروٹین، فائبر، کاربوہائیڈریٹس کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ یہ پٹھوں کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ حلیم کو حیدرآباد شہر میں نظام خاندان نے متعارف کروایا تھا۔ ماہ رمضان کے دوران حلیم کا ذائقہ چکھنے کے لیے اکثر و بیشتر لوگ پرانے شہر کا رخ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آغاز سے قبل جہاں بھٹیوں کی تیاریاں زور و شور سے کی جا رہی ہیں، وہیں حلیم گھوٹا کی فروخت بھی تیزی سے ہو رہی ہے۔ حلیم بنانے کا چمچہ جو کہ لکڑی سے بنا ہوا ہوتا ہے اسے گھوٹا کہتے ہیں۔ حلیم پکانے کے لیے استعمال کیے جانے والے گیہوں کو پیسنے یا گھوٹنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ گھوٹا بنانے والے افراد کی بھی ماہ رمضان سے قبل بہت زیادہ مانگ بڑھ جاتی ہے۔ پرانے شہر کے علاقے چھتا بازار میں محمد انور گھوٹا بناتے ہیں۔ دونوں شہروں میں ماہ رمضان المبارک کے دوران حلیم کی تیاری کے سلسلے میں مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے حلیم کی تیاری کے دوران صفائی کا خیال رکھنے، معیاری گوشت اور معیاری اجزاء کا استعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ عوام معیاری لذیذ ڈش کا مزہ لے سکیں۔ رمضان کے مقدس مہینے کے آغاز سے کچھ ہی دن پہلے بازاروں میں گہما گہمی بڑھ گئی ہے۔ لوگ بے صبری سے عبادتیں کرنے کے ساتھ ساتھ مزیدار پکوان حلیم کی دستیابی کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے شاہی مسجد باغ عامہ کا دورہ کرتے ہوئے رمضان کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔ مقدس بابرکت مہینہ رمضان شروع ہونے میں کچھ ہی دن بچے ہیں۔ مسجد میں آنے والے تمام مصلیوں کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیسٹ اسد الدین اویسی کی ہدایت پر MLA جعفر حسین معراج نے شاہی مسجد باغ عامہ کا دورہ کیا اور شامیانے کی تنصیب، داغدوزی، POP، مسجد میں پانی کی سربراہی، افطار کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ MLA نے جاری کاموں میں تیزی لاتے ہوئے انہیں رمضان کے آغاز سے قبل ہی مکمل کر لینے کی ہدایت بھی جاری کی۔ محکمہ JHMG کی جانب سے صاف صفائی اور موبائل ٹوائلٹ کی فراہمی کے اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے مسجد میں رمضان میں افطار کا نظم کیا گیا ہے۔ شاہی مسجد باغ عامہ کے دورے کے موقع پر رکن اسمبلی کے ہمراہ ریڈ ہلز کارپوریٹر عارف الدین، مجلس کے دیگر قائدین، مسجد کمیٹی کے ذمہ داران، بلدی برقی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ آج شاہی مسجد باغ عامہ کے انسپیکشن کے لیے میں اور ایریا کے کارپوریٹر جناب عارف رضوان صاحب اور تمام محکموں کے لوگ یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ رمضان کے مہینے کے اندر الحمدللہ شاہی مسجد کے اندر کافی لوگ نہ صرف تراویح کے لیے آتے ہیں بلکہ تہجد کے لیے بھی کافی لوگ آتے ہیں۔ یہ ایک اپنے آپ میں ایک کافی اسٹیٹ کی ایک بہت بڑی مسجدوں میں شمار ہوتا ہے۔ جو اسٹیٹ کے اندر 2 مسجد جس کو گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹ آنر دیا گیا ہوا ہے، ایک مکہ مسجد، ایک شاہی مسجد۔ شاہی مسجد نامپلی اسمبلی کانسٹیٹنسی میں آتی ہے، جس کے لیے ہم نے ہر سال رمضان سے پہلے کام کراتے ہیں۔ اسی کام کے سلسلے کے اندر چونکہ اب کی بار MLC بورڈ کی طرف سے ٹینڈرز نہیں ہو سکے، ہم GHMC کی طرف سے مکمل پورا شیڈ ڈلاتے ہیں، چونکہ مصلیاں جو شام میں آتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہونے کے لیے پورا ٹوٹل شیڈ ڈلاتے ہیں۔ اور شیڈ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ موبائل ٹوائلٹ، کیونکہ جتنے بھی ٹوائلٹ ہیں کیپیسٹی بس نہیں ہوتی تو ہم یہاں پہ موبائل ٹوائلٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور مسجد کو پوری خوبصورت بنانے کے لیے، کیونکہ ایک زمانہ پرانی مسجد ہے، اس کو اچھے سے GHMC سے کلر لائٹنگ کرواتے ہیں۔ اب کی مرتبہ رمضان کے لیے
रॉयल मार्क्स जो यहाँ पे शाही मस्जिद है, इसमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी काम यहाँ पर हम लोग टेकअप किए हैं। उस कामों की लिस्ट मैं आपको बोलता हूँ। कलरिंग करा रहे हैं, रिपेयरिंग फाउंटेन करा रहे हैं, रिपेयरिंग ऑफ गोडाउन्स, लेडीज प्रेयर हॉल करा रहे हैं, शेल्टर फॉर जनरेटर करा रहे हैं। 3 मेन गेट को टोटली न सिर्फ रिपेयर कराए हैं बल्कि उसके जो लाइट होते हैं उसको भी ठीक कराए हैं, और जो 6 टॉयलेट थे उसको भी क्लियर कराए हैं। स्टील लैडर जो यहाँ पे जो सीढ़ी थे मेंटेनेंस के लिए उसको भी करे हैं। कलरिंग पूरी जाली को कराए हैं, जानीमाज़ों को पूरा धुलाने लगाए हैं। और यहाँ पे जो रमज़ान में लोग इफ्तार के लिए आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब की मरतबा 400 केजी खजूर यहाँ पे भिजाए जा रहे हैं रोज़गार के लिए। डिस्पोजेबल प्लास्टिक दस्तरखान हम सप्लाई कर रहे हैं, और वुडन ब्रश दे रहे हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं। टेंट के अंदर डाल रहे हैं, वाटर कूलर एक दे रहे हैं, और प्लास्टिक के हम जानीमाज़ एक 50 दे रहे हैं, क्योंकि रमज़ान के अंदर लोग गिराते हैं करते हैं, उसके ऊपर भी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो चीज़ हमको हाउस कीपिंग के मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तमाम पूरा मटेरियल सप्लाई। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई है। मामले की जांच कर रही SIT ने TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी को नोटिस भेजा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह रेवंत रेड्डी ने पेपर लीक मामले के खिलाफ गुज़िश्ता रोज धरना मुनज़्ज़म करते हुए इस मामले में KTR के PA तिरुपति के मुलविस होने का इंकशाफ किया था और IT मिनिस्टर KTR को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसी के चलते SIT ने रेवंत रेड्डी को नोटिस रवाना करते हुए उनकी जानिब से लगाए गए इल्जामात पर सबूत पेश करने को कहा है। खुसूसी तहकीकाती टीम की जानिब से पेपर लीक होने पर KTR पर इल्जामात लगाने वाले सियासी लीडरों को नोटिस जारी करते हुए सबूत मांगे गए हैं। ताहम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उन्हें SIT का नोटिस मौसूल नहीं हुआ है। अगर नोटिस आता है तो वो जरूर जवाब देंगे। वैसा तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने केसीआर हुकूमत पर किसानों पर तवज्जो न देने का इल्जाम लगाया है। YS शर्मिला ने जिले विखाराबाद के मोमिनपेट मंडल का दौरा करते हुए मूसलाधार बारिश और शाला बारिश से मुतासिर होने वाली फसलों का मुआयना किया, किसानों से बातचीत की। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत पर किसानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बारिश से हुए गैर मामूली नुकसानात के बावजूद महकमा ज़राअत के अहदेदारों ने अभी तक ना तो खेतों का मुआयना किया है और ना ही किसानों से मुलाकात की है। YS शर्मिला ने पूछा है कि ऐसी BRS हुकूमत की क्या ज़रूरत है जिससे किसानों की परवाह ही नहीं है। किसानों को मुआवजा दिलाने तक YSRTP की जानिब से जद्दोजहद जारी रखने का तयक़ुन दिलाते हुए शर्मिला ने कहा है कि हुकूमत को फौरी इस सिलसिले में जवाब देना चाहिए। नागर कर्नूल ऑटो नगर के मुकामी अफराद व लीडरान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात करते हुए उन्हें एक तहरीरी याददाश्त सौंपी है। तफसीलात के मुताबिक ऑटो नगर वक्फ कॉम्प्लेक्स में 16 एकड़ वक्फ अराजी है, जहां 200 दुकानात हैं। साल 2012 में 2.5 एकड़ अराजी 140 लोगों को दुकानात के लिए अलॉट की गई थी। वफ्द ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन को बताया कि नाजिर मोहिउद्दीन की बतौर वक्फ कॉम्प्लेक्स चेयरमैन के 5 साल कबल ही मुद्दत कार ख़त्म हो चुकी है। ताहम वो बतौर चेयरमैन अपनी कारकर्दगी जारी रखते हुए गैर कानूनी काम कर रहे हैं। दुकानात तो ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करते हुए रसीद कम कीमत की दे रहे हैं। अवाम ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से दरख्वास्त की है कि वो इस मसले की यकसुई करे और गरीबों को राहत पहुँचाए। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने वफ्द को इस मसले को हल करने का यकीन दिलाया है। मेरा नाम इमरान खान है। नागर कर्नूल के वक्फ बोर्ड के बारे में जो मसाइल है वो लेके चेयरमैन साहब के पास आए। चेयरमैन साहब से मिले, उन्होंने वादा करे हमारे नागर कर्नूल के जो भी पेंडिंग काम है वो पूरा करते हैं बोले। और मेन मसाइल जो है हमारे नागर कर्नूल में 8 साल से एक ही चेयरमैन जो वक्फ बोर्ड रिमूव करा था उन कोर्ट के बेस पे अच्छा अपनी खुदगर्जी पे काम कर ले रहा, उनको हटाओ बोल के मेन मुद्दा हमारा वो है। दूसरी बात यह है, गरीब लोगों को 2012 में नागर कर्नूल में ऑटो नगर अलाट करे थे। वो ऑटो नगर को उन अपने ज़रूरत के वास्ते बेच लेके 2-2, 3-3 लाख रुपए में मलगियाँ अलाट करके सिर्फ 30,000, 20,000 के रसीद दे के बिनामी कामा जो कर रहा है उसके वास्ते हम एक आवाज़ उठा के CO साहब के पास आए। वक्फ बोर्ड CO साहब को इससे पहले दरख्वास्त दिए थे, 8 साल से दे रहे रेगुलर, लेकिन अब जो हम ख्याल जो CO
चेयरमैन साहब जो है मसीहुल्लाह साहब, उन पे हमारा भरोसा था और है, आगे भी रहेगा। इसलिए मिलने यहाँ से हम नागर कर्नूल से 200 आदमी यहाँ पे आए, उनसे बात लिए और उन्होंने भी हमारे से वादा करे कि ज़रूर सबको हेल्प करते बोले। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से इक़्तिसादी इमदादी स्कीम के तहत अक़लियती इस्तफ़ादा कुनिंदगान का इंतखाब क़ुरानदाज़ी के ज़रिए अमल में लाते हुए उन्हें क़र्ज़-जात फ़राहम करने का ऐलान किया गया है। हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से अक़लियतों को क़र्ज़-जात फ़राहम किए जाते हैं, ताहम इस बार एक ख़ुसूसी कमेटी क़ायम की गई है और क़ुरानदाज़ी के ज़रिए क़र्ज़-जात फ़राहम करने का फ़ैसला किया गया है। 21 मार्च को सुबह 11 बजे क़ुरानदाज़ी का अमल अंजाम पाएगा। मोहम्मद इलियास अहमद, डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, ने इस सिलसिले में तफसीलात बताई हैं। मेरा नाम मोहम्मद इलियास अहमद, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। ये इकोनॉमिकल सोशल सपोर्ट स्कीम के तहत माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की, जिसमें एप्लीकेशंस कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में जो है कॉल फॉर करे थे, जिसमें से 61,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए और ये कमेटी गवर्नमेंट जो है की तरफ से फॉर्म हुई, जिसके कलेक्टर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, एडिशनल कलेक्टर मेंबर है, जोनल कमिश्नर्स कन्वीनर है और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर और लीड बैंक मैनेजर इज द मेंबर्स। कल जो है इसी सिलसिले में कलेक्टर साहब की हिदायत के मुताबिक कल जो है इंशाअल्लाह क़ुरानदाज़ी होगी, प्रिंट मीडिया और जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूबरू, और इसमें जो है मेंबर्स शरीक होंगे, वो जो है इसको ड्रा करेंगे। क्या टाइम पे? सुबह 11 बजे इंशाअल्लाह, सुबह 11 बजे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के हाथों इस्तफादा कुनिंदगान में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम अमल में आई है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सरबरा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद की हिदायत पर MLC रियाजुल हसन आफंदी ने पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में 22 इस्तफादा कुनिंदगान को कुल 9,42,000 रुपये मालियती चेक सौंपे। इस मौके पर मजलिसी कायदीन वो दीगर भी मौजूद थे। राजन्ना सिलसिला के नौजवान नवीन की खुदकुशी पर सियासत करने की कोशिश करने वाली YSRTP की रहनुमा YS शर्मिला को तलख तजुर्बे का सामना रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते रोजगार न मिलने से परेशान राजल्ला सिलसिला के एक नौजवान के खुदकुशी कर लेने का वाक़या पेश आया है। मुतवफ़्फ़ी की जानिब से मौत के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराए जाने के बावजूद और TSPSC पेपर लीक मामले से इसका कोई ताल्लुक न होने के बावजूद भी तेलंगाना की अपोजिशन जमातें इस वाक़े को सियासी रंग देने और BRS हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिशें कर रही हैं। मुतवफ़्फ़ी नवीन के अहले खाना को पुरसा देने पहुंची YS शर्मिला पर नवीन के वालिद ने बरहमी का इजहार किया और उनसे नाशों पर सियासत न करने की भी दरख्वास्त की। कांग्रेस MLC जीवन रेड्डी को भी गुज़िश्ता रोज़ खुदकुशी करने वाले शख्स के वालिद की जानिब से नाराजगी का सामना रहा। रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने एक आला सतही इजलास तलब करते हुए रमज़ान मुबारक के इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। के ईश्वर ने माह रमज़ान के खुसूस में ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें जारी की हैं। मसाजिद के अतराफ साफ़ सफाई को यकीनी बनाने, बिजली और बर्क़ी की बिला रुकावट सरबराही करने को कहा गया है। माह रमज़ान का आगाज़ होने में महज 3 दिन ही बाकी हैं। इसी खुसूस में तमाम महकमा जात के अफसरान को मुसल्लियों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने को कहा गया है। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी, वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान के अलावा मुख्तलिफ महकमा जात जैसे बल्दी बर्क़ी आब रसानी के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। दहली शराब मामले के सिलसिले में BRS की रुकन कौंसल के कविता दूसरे दौर की पूछताछ के सिलसिले में दिल्ली में ED के दफ्तर पर हाजिर हुई। कविता अपने शौहर अनिल और सीनियर एडवोकेट सोमा भारत कुमार के साथ दिल्ली में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की रिहायशगाह से ED के दफ्तर के लिए रवाना हुई। ED के दफ्तर रवानगी से पहले उनसे कई कायदीन ने मुलाकात करते हुए हमदर्दी और अपनी तायद का इजहार किया। कविता ED की तहकीकात के पेश नज़र इतवार की शाम हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। कविता ने गुज़िश्ता जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसमें ED की जानिब से जारी करदा नोटिस को मनसूख करने की ख्वाहिश
की गई थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने कहा है कि बिहार में 2025 में होने वाले असेंबली इंतखाबात में मजलिस 50 से ज़्यादा नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2024 में पार्लिमानी इंतखाबात में न सिर्फ किशनगंज बल्कि दीगर लोकसभा हलकों पर मुकाबले के सिलसिले में मजलिस गौर करेगी। अख्तरुल ईमान की क़यादत में बिहार के मुख्तलिफ अजला में मजलिस के तंजीमी ढांचे को मुस्तहकम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का जो वादा किया गया था उसको पूरा करने की ज़रूरत है। इस तरह मजलिस ने कहा कि दस्तूर के खिलाफ बात करने वाला दस्तूर का दुश्मन है। यकीनन हमसे थोड़ी कोताही हो गई कि पिछले विधानसभा के चुनाव में हम कम सीट पर लड़े और सीमांचल तक अपने आप को महदूद रखा था, और अब की बार जब 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे हम 50 से ज़्यादा सीटों पर भी लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। पार्लियामेंट के चुनाव जो 2024 में होंगे तो सिर्फ किशनगंज की पार्लियामेंट सीट नहीं बल्कि और भी पार्लियामेंट की सीट पर हम लड़ने के बारे में फैसला लेंगे। अब हमको आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ेंगे। इसी सिलसिले में अख्तरुल ईमान साहब की लीडरशिप में बिहार के मुख्तलिफ जिलों में मजलिस के संगठन को मजबूत किया जा रहा है और बहुत से लोग आगे आ रहे हैं और हम यकीनन इस बात पर अटल है और अच्छा फैसला। गठबंधन को लेकर भी कुछ सोचा है? जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी और रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा ने उनके हल्के चंद्रायन गुट्टा के इलाके जहांगीराबाद, नूरी नगर, बंडलागुड़ा और दीगर इलाकों में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। कायद मजलिस से मुलाकात के लिए लोग बेचैन नज़र आ रहे थे। काफ़ी गर्मजोशी से नौजवानों ने उनका कदमोदम किया। ख़वातीन की कसीर तादाद ने भी कायद मजलिस से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मोहल्ले के ज़ईफ़ अफराद ने रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा को दुआएं भी दी। दौरे के दौरान मुहिबानी मजलिस और मुकामी नौजवान मुसलसल नारे लगा रहे थे। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी के दौरे के दौरान अवाम के मसाइल की समाअत भी की गई और बल्दी डिवीज़न बारकस व चंद्रायन गुट्टा के ज़रिए अल्तवा तरक्याती कामों का भी जायज़ा लिया गया। रियासती वजीर गंगुल्ला कमलाकर ने वाज़ेह किया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मामले में अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को निशाना बनाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले की इत्तला के साथ ही मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया और SIT की तश्कील अमल में लाई गई। इस मामले पर हुकूमत की संजीदगी पर सवाल उठाना मुनासिब नहीं है। కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ బీజేపీ పార్టీ కానీ బురద జల్లాలి, అవకాశం తీసుకోవాలి, తప్పుదోవ పట్టియాలి అనే ఉద్దేశంతో చాలా దుర్మార్గంగా తెలంగాణ సమాజాన్ని, తెలంగాణ యువతను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నంలో చేస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు తన రాజకీయ లబ్ధి కోసము మళ్ళీ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పోటాపోటీ పాదయాత్ర చేస్తున్నారు. ఒకవేళ ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి బట్టి విక్రమార్క పాదయాత్ర చేస్తున్నారు. ఈరోజు నిజామాబాద్లో రేవంత్ రెడ్డి పాదయాత్ర. మరి ఈ పాదయాత్రలో ఎవరికి ప్రయారిటీ రావాలంటే ఎవరి మీద అయితే కేటీ రామారావు లాంటి వారి మీద దుష్ప్రచారం చేసుకుంటూ రోజుకొక కొత్త ఆరోపణలు చేస్తూ ఉంటే లైమ్లైట్లో ఉండాలి. తద్వారా బట్టి పాదయాత్ర కనుమరుగు కావాలి. నేను చెప్పిన వాక్యాలే ముందుకు రావాలనే ఉద్దేశంతో ఆధారాలు లేని ఆరోపణలు చేసుకుంటూ ప్రజలను అయోమయ గురి చేస్తున్నారు. కేటీ రామారావు మీద, కేటీ రామారావు PA మీద, వాళ్ళ పేషి మీద. वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आला मर्री चन्ना रेड्डी ने हल्के असम्बली सनत नगर से मुंतखब होने के बाद इस हल्के में कोई तरक्याती काम नहीं किए। उन्होंने कहा कि चन्ना रेड्डी के बेटे शशिधर रेड्डी भी इस हल्के से मुंतखब होने के बाद उन्होंने कई तरक्याती कामों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस हल्के की तरक्की के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने करोड़ों रुपए अलॉट किए हैं। श्रीनिवास यादव ने सनत नगर में अलाउद्दीन कोठी और दीगर इलाकों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और इन मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई। माह रमज़ान मुबारक के पेश नज़र नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिदायत पर
सैयद अहमद पाशा खादरी मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली याकूतपुरा ने आज GHMC, वाटर बोर्ड, बरकी, पुलिस और दीगर महकमे जात के आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने माह मुक़द्दस के पेश नज़र मुख्तलिफ कामों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया और जारिया कामों को जल्द पूरा करने की हिदायत दी। इस मौके पर याकूतपुरा के मजलिसी कारपोरेटर्स के साथ साथ इब्तदाई मदारिस के सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के तमाम बल्दी डिवीज़नों के कारपोरेटर्स के साथ बल्दी, बरकी, आबरासानी, ट्रैफिक पुलिस, लैंड ऑर्डर पुलिस और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के तमाम लोगों के साथ रमज़ान के खुसूसी इंतजाम के लिए आज सईद विला फंक्शन हॉल रैन बाज़ार में एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें पूरे काउंसलर अपने अपने हल्कों की शिकायतें पेश किए। तकरीबन 40 के करीब ऑफिसर शिरकत किए और उन्होंने तयक़ुन दिया कि रमज़ान के लिए हम पूरे स्पेशल इंतजाम करेंगे, पब्लिक को शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसमें ख़ास बात यह है कि इफ्तार के वक्त ट्रैफिक जाम हो जाती है, पुलिस बंदोबस्त करना चाहिए और इफ्तार के वक्त ऐन वक्त पे चालाना करने का निकलते रमज़ान के महीने में 7 दिनों में नहीं निकलते, उसको बंद कर देना चाहिए और लाइट को बिला वक्फा बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाना चाहिए। मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाना और जहाँ कहीं भी बरक़ी की शिकायत है उसको फौरी दूर करना। रमज़ान के महीने में तमाम महकमे के लोग इमरजेंसी स्टाफ के तौर पर काम करना और जहाँ से भी कोई शिकायत का मौका मिले उसको दूर करना चाहिए। मेरा रमज़ान पुरअमन तौर पे गुजारने के लिए बल्दी, बरक़ी, आबरासानी सहूलत आवाम को और मुसलमानों को फराहम करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। तमाम ऑफिसरों ने तयक़ुन दिया कि हम बेहतर इंतजाम के ज़रिए इस काम में हम ताउन करेंगे। शुक्रिया। सूर्यापेट ज़िले के कोदाड़ में बालाजी नगर के करीब कशीदगी देखी गई, क्योंकि मुकामी अफराद ने डबल बेडरूम मकानात का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया। चरचल्ला कोदाड़ कौमी शाहरा पर यह एहतजाज किया गया। इन अफराद ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। कई अफराद ने शिकायत करते हुए कहा कि डबल बेडरूम मकानात की फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं है। उन्होंने फहरिस्त में नाम शामिल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की, इससे सूरत हाल कशीदा हो गई। महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली सुरेखा यादव ने वंदे भारत ट्रेन की पहली खातून लोको पायलट बनते हुए तारीख रकम की है। उन्होंने ये मौका देने पर वजारत रेलवे से इजहार तशक्कुर किया। सतारा ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली सुरेखा यादव शोलापुर और मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक ट्रेन चलाते हुए खिदमत अंजाम दे रही हैं। इस तरह वो एशिया की पहली खातून लोको पायलट बन गई हैं, जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन को चलाने का एजाज़ हासिल किया है। हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 918 केसेस और 4 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। मरकजी महकमा सेहत के जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में 918 केसेस दर्ज किए जाने के बाद एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 6,350 हो गई है। कोरोना हलाकतों की तादाद 4 अमवात के बाद 5,30,806 रही है। यौमिया मुस्बित शरह 2.08% और हफ्तावार मुस्बित शरह 0.86% रिकॉर्ड की गई है। कुल मुतासरीन की तादाद 4,46,96,338 है, जबकि शरह सेहतियाबी 98.8% पर बरकरार है। 24 घंटों के दौरान कुल 44,225 कोरोना टेस्ट करवाए गए हैं। इस बीमारी से 4,41,59,182 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि शरह अमवात 1.19% रिकॉर्ड की गई है। टीका अंदाजी मुहिम के तहत कुल 220,65,00,000 अफराद ने कोरोना टीका लिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।